Okay, a very good morning to all. Yes, students, let us start with today's topic. Before starting, let me tell you, I have received holidays homework from very few students. Today I will be sending you the defaulter list, and today is the last day to send. Till 12 o'clock you have to send the holidays homework, otherwise I'll be marking 0, as it is the case of multiple assessment and subject enrichment. These marks are going to be added in your September exams. So send your holidays homework today by 12 o'clock. Okay? So that I can assess your work and give you marks. Right? Is this clear to all? Okay. Hopefully it is clear, and please send the work on my personal number, not in the group. Okay ji, let us start. Okay students, yesterday we did acids. Just a small recapitulation. हमने क्या करा था? एसिड्स क्या होते हैं? दे आर सोर इन टेस्ट, थोड़े से खट्टे होते हैं, राइट? दीज एसिड्स दे आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स. नेचुरल एसिड्स हमने क्या करे? दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? Then we did mineral acids. What are mineral acids? That are found under the earth. ठीक है? We get the acids from the things that are present under the earth. These are man-made. They are basically used in laboratories. Then we give few examples. Laboratory acids जो है कौन कौन से करे हमने कल? Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. Remember? और नेचुरल एसिड्स कौन से करे हमने? सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, राइट? लैक्टिक एसिड जो कर्ड में प्रेजेंट होता है. तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने 3-4 एग्जांपल्स नेचुरल की करी. 3 एग्जांपल्स वी डिड ऑफ लेबोरेटरी एसिड्स. देन बच्चे उसके बाद वी डिड डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स. डाइल्यूट एसिड्स कौन से होते हैं? Which have more quantity of water and less amount of acid, right? And concentrated, concentrate का मतलब होता है गाढ़ा, thick, ज्यादा. dilute का मतलब होता है पानी. जहां word dilute आ गया, it means more amount of water is there. word concentrated means thick, गाढ़ा. it means उसमें पानी की कमी है. Means concentrated has more of acid and less of water, right? इतना हमने करा. Then students, our today's topic is base. Very important. Base क्या होते हैं? What are bases? बच्चे, bases are the substances which do not have sour taste. They have bitter taste. कैसा टेस्ट होता है? bitter taste, कड़वा. Okay, sour means खट्टा, bitter means कड़वा, right? They have bitter taste. एक और खासियत है, हम अगर इनको अपने हैंड्स के बीच, फिंगर्स के बीच रब करें बेसिस को, तो क्या होता है? They become sticky. Right? We feel soapy touch. Soapy touch. अब एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको. साबुन, soap that you use, it is basic in nature. It has a base in it. उसको आप रब करते हो तो वो स्टिकी सा हो जाता है, वो चिपचिपा हो जाता है, सोपी सा सोल्यूशन बन जाता है. सर्फ है आपका. They are basic in nature. They are bases. एक और एग्जाम्पल देती हूँ किचन से. बेकिंग सोडा सुने? जो केक में डालते हो, बेकिंग सोडा, ठीक है? बेकिंग सोडा केक में डालते हो. कई बार जब आपने घर में भटूरे वगैरह बनाने होते हैं उसमें भी डालते हो, फूल जाता है वो बेकिंग सोडा होता है. दैट इज ऑल्सो अ बेस. उसको आप पाउडर को थोड़ा सा पानी लगा के इसमें रब करके देखना है, ऐसे ऐसे करके फिंगर्स के साथ. यू विल फील सोपी टच, राइट? So what are bases? Bases are the
Materials which are the substances which are having bitter taste, which are soapy in nature, right? They are known as bases. ऐसे substances को हम क्या बोलते हैं? Bases. So their nature is basic. कल हमने कौन से substances की nature acidic करी थी? जिनका sour taste था. आज हम ऐसे substances करेंगे which have basic nature, right? So कुछ bases मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से होते हैं. जो bases हम आम use करते हैं, name note कर लो, formally note कर लो, ठीक है? First is sodium हाइड्रोक्साइड. ये शायद मैंने आपको लास्ट टाइम भी इंट्रोड्यूस करवाया था वर्ड 6th क्लास में. सोडियम इज N कैपिटल, A स्मॉल, एंड हाइड्रोक्साइड OH. सोडियम हाइड्रोक्साइड. गॉट इट? प्लीज नोट इट डाउन. ये बेस है, सोडियम hydroxide, right? Then next is potassium hydroxide. पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? Could anybody tell? पोटेशियम लास्ट टाइम हमने मिनरल्स में करा था. हमारी बॉडी को जरूरत होती है पोटेशियम की, रिमेंबर? तो क्या होता है इसका सिंबल? मैंने तब भी करवाया था. लिख के मैसेज करो फटाफट. के. वेरी राइट, के. गुड बनी. पोटेशियम का सिंबल के. कनिष्क स्मॉल के कोई नहीं डालेगा, इट इज कैपिटल के. अगर स्मॉल डालोगे सिंबल गलत. हाइड्रोक्साइड का सिंबल है OH. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट? इज दिस क्लियर? थर्ड इज, अब ये ध्यान से देखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम? गलत भव्या, इट इज Ca. यस, राइट सुहाना. कैल्शियम का ये सिंबल होता है. हाइड्रोक्साइड OH, पर इसमें हम OH2 लेते हैं. दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. वो जब हम इक्वेशंस करेंगे ना 9th 10th स्टैंडर्ड में, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, तो आपको पता चलेगा ये OH2 कैसे आया. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके. नंबर 4, एक और एग्जांपल दे देती हूँ. आफ्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देयर इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट इज द सिंबल? नीचे लिख रही हूं Mg. मैग्नीशियम. कनव टाइप द मैसेज. Mg मैग्नीशियम. हाइड्रोक्साइड like this, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. गलत है कृष्णा. क्या लिखा है आपने? इट इज OH2, राइट? हाँ कनव, आई नो आपकी कोई फेक आईडी से एंटर किया. आई हैव सीन, नो प्रॉब्लम. लेट अस इग्नोर दैट चाइल्ड. ओके, उसकी एब्सेंट मार्क होगी, हमारा तो क्या ही जाएगा. Rishita, you can type the message beta. So these are the few examples of bases. Learn these symbols. They are going to be helpful to you in the next chapters. ठीक है? Okay students.
बेसिस का आपकी, हाँ जी, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस ऋषिता, राइट, ये भी बेसिस है, ओके, डन। इफ दिस इज डन, शैल आई रेज दिस, बिकॉज बेस हमारे इतने ही दिए हुए हैं। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूट्रल सब्सटेंसेस, देन इंडिकेटर्स, बेसिकली इंडिकेटर्स, ओके। ओके जी, shall I raise this now? Okay students, let us move to neutral substances. करते ही raise, okay. So साथ साथ हम एसिड और बेसिस के डिफरेंसेस करते जाते हैं, ठीक है। पूरे डिफरेंसेस तो सारा टॉपिक कवर करने के बाद, इंडिकेटर्स खत्म करने के बाद लिखवाऊंगी, बट जितना को हमने करा है उसके अकॉर्डिंग एसिडिक का टेस्ट क्या होता है, सोर, बेसिस का टेस्ट क्या होता है, बिटर, ठीक है, क्लियर। एसिड में क्या आता है, अगर आपने नोटिस किया हो, H, हर एक के आगे H आया था, H प्लस आयन, और बेसिस में क्या आता है, OH, क्लियर, इतना हो गया। देन स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। एक और है, एसिड्स दे आर नॉट सोपी टू टच, बेसिस आर सोपी टू टच। इसमें भी, बेसिस में भी, जैसे हमने क्वेश्चन करी थी एसिड्स में, हर चीज को आपने टेस्ट करके देखने की कोशिश नहीं करनी कि ये बिटर है कि ये सोर है, राइट, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट एडिबल, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, एक क्वेश्चन अराइज होता है, चलो वो बाद में करते हैं, पहले न्यूट्रल खत्म कर लेते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रल सब्सटेंसेस। क्या होते हैं ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस, थोड़ा सा आइडिया, व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस फ्रॉम द वर्ड, किसी को अंदाजा हो तो। यू कैन टाइप द मैसेज, राइट सुहाना, सॉल्ट है, पर होते क्या है, विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, जो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, दे आर नोन एज न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ना तो वो एसिडिक है ना बेसिक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि इसमें कोई आयन ही नहीं है, ना पॉजिटिव आयन है ना नेगेटिव है, डिस्टिल्ड वाटर, सॉल्ट, शुगर, दीज आर न्यूट्रल, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज, यूरिया, these are neutral substances, right? Is this clear? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मैंने आपको करवा दिए,
Is this clear? Now let us move to the next topic, that is indicators. Indicators क्या होते हैं? Beta, urea is also a substance. It is used as fertilizer also, right? Okay, Bhavya? हाँ जी. Urea. Satvik, urea. UREA. Shall I raise this now? Let us move to very very important topic, indicators. इसके बेस पे हमारे एक्सपेरिमेंट भी हैं जो हम लैब में करेंगे, ठीक है? और ये साथ साथ नोट करते जाना. इंडिकेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं करना. ओके, शैल आई रेज दिस? ओके, क्या होते हैं इंडिकेटर्स? एनी आइडियाज? Indicators. बच्चे, as I told you, Rishita, you can type the yes, Bhavya, right, that indicates something. Rishita, as I told you, type the message. Okay, बच्चे, मैं अपने पुराने क्वेश्चन पे फिर से आती हूँ. My question was, हमने करा acids are sour in taste and bases are bitter in taste. By tasting them, we come to know what is the nature of the substance, कि वो एसिडिक है या बेसिक है. बट साथ ही मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं कि डोंट कंज्यूम एनी सब्सटेंस without the knowing. All the substances may not be edible, they may be poisonous. So how will you come to know that the substance is acidic or basic? There are some things known as indicators. These indicators, they give different colors in different mediums. So we use indicators to test whether a substance is acidic or basic. Note down, क्या है indicators? Write down, फटाफट लिखिए. They are special substances. Indicators are special substances which give different colors in acidic and basic mediums. Which give different colors in acidic and basic mediums. Thus they are used to test acidic और basic. सात्विक किसी में भी डालो, acidic basic दोनों में अलग अलग कलर्स आएंगे. Indicators are special substances which give different colors in acidic and basic mediums. They are used to test whether a substance is acidic or basic in nature. Right? Sanchit, type the message. Is this clear? Now there are two types of indicators. Natural indicators, human made indicators. Natural indicators, human made indicators. Human made indicators. What are natural indicators? अनमोल रिपीट कर रही हूं मैं. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दे आर द स्पेशल सब्सटेंसेस which give different colors in acidic and basic mediums. They are used to test whether the substance is acidic or basic. Right? Now there are two types of indicators: natural indicators, human made indicators. What are natural indicators? That occur naturally. That occur naturally. For example, Sanchit,
कौन से कलर्स? मैं दोबारा बोलती हूँ इंडिकेटर्स की डेफिनेशन, आराम से लिखो, राइट डाउन. Indicators are special substances that give different colors in acidic and basic medium. ठीक है? They are used to test whether the substance is acidic or basic in nature. Right? Now indicators are of two types: natural indicators, human made indicators. Natural indicators are the indicators that occur naturally. For example, means that are obtained from plants or animals. Right, Krishna? Turmeric, best indicator. Turmeric. Okay. Then is China rose petals. China rose is a flower, जिसको आप हिबिस्कस भी बोलते हो. China rose petals, right? Then there is litmus. Then there is red cabbage juice. They are natural indicators. Note down these. ये हमने वन बाय वन सारे स्टडी करने हैं नेचुरल इंडिकेटर्स. कमिंग टू ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स, very important. These indicators, they are used in labs. They are prepared by man synthetically. Best example, phenolphthalein. ये स्पेलिंग्स गलत नहीं कर देना. phenolphthalein, ये कॉमनली हम यूज करते हैं phenolphthalein +1 +2 में. ठीक है. देन मिथाइल ऑरेंज. नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज. ये लैब्स में पड़े होते हैं हमारे पास. मिथाइल ऑरेंज. इज दिस क्लियर? मिथाइल ऑरेंज, phenolphthalein, they are human made indicators. Is this clear? डन. इसके बाद लिटमस स्टार्ट करनी है. हरी आप आज लिटमस स्टार्ट कर देनी है मैंने. Human made indicators are the indicators that are made by man synthetically in laboratories. Got it, Mishti? Two examples are phenolphthalein और methyl orange. और भी होते हैं, but in your class we will be learning these two. We will be using these two: phenolphthalein, methyl orange. Right? Is this clear? Is this clear to all?
हाँ जी, चलिए, आई एम गोइंग टू इरेज इट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लिटमस एज एन इंडिकेटर. डन, ऑल दीज डन इंडिकेटर्स. लेट अस स्टार्ट विद लिटमस. जस्ट स्टार्ट करेंगे, टच करेंगे, ठीक है, और आगे नहीं पढ़ेंगे. फर्स्ट इज litmus. Litmus as an indicator. Litmus क्या है? What is litmus? It is a dye. Dye क्या होती है? जो चीज को कलर इम्पार्ट करे. A dye extracted from lichens. ये वो डाई है जो हमें लाइकन्स से मिलती है. लाइकन्स क्या है? यू रिमेंबर सिम्बायोटिक एसोसिएशन. क्या है लाइकन्स? कैन एनीबडी टेल व्हाट आर लाइकन्स? टाइप अ मैसेज. हरी अप, आई वांट टू नो व्हाट आर लाइकन्स. सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, किस किस की होती है लाइकन्स में? ये तो एसोसिएशन है ना. यस भव्या, राइट. एल्गे एंड फंजाई की एसोसिएशन है, दैट इज नोन एज लाइकन्स. सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है. ये जो डाई है ये लाइकन्स से ऑब्टेन होती है. इट इज नोन एज लिटमस. राइट, क्लियर. अब क्या होता है लिटमस का? अगर लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में डालें. डिस्टिल्ड वाटर क्या है? इट इज न्यूट्रल. डिस्टिल्ड वाटर क्या है? न्यूट्रल. ये कलर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे. अगर लिटमस सॉल्यूशन हम डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करते हैं, मीन्स इट गिव्स मॉव कलर. मॉव जो पर्पल सा कलर होता है ना, मॉव कलर, ये मॉव कलर देता है. राइट. और ये जो सॉल्यूशन आया लिटमस को डिस्टिल्ड कलर में मिक्स करने के बाद, मॉव कलर का जो सॉल्यूशन आया, इसको बोलते हैं न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं? मतलब अब हमारे पास लिटमस का सॉल्यूशन बन गया. कौन से कलर का? मॉव कलर का. Is this clear? Is this clear, students? Any doubt in this? सिर्फ इतना कराऊंगी.